तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, भगवान के वचनों को, भगवान बुद्ध के वचनों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारे, भगवान के सारे वचन, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन 3 संग्रहों के रूप में संग्रहित किए गए थे भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद। और भारत में एक अनूठी घटना 2006 से हो रही है। लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल और इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल के द्वारा 2006 से भारत में हर साल 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 10 दिन के लिए इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग होती है, जिसमें भगवान के वचनों का संगायन होता है। भगवान के वचन, वो दिव्य वचन, और विगत 20 वर्षों में भारत में सुत्त पिटक का संगायन पूरा हो चुका है। और ये बड़े अनूठा संयोग है कि अभी विगत से विगत वर्ष विनय पिटक की शुरुआत हुई है और अब 20 वर्षों के बाद पहली बार भारत को मुख्य आयोजक होने का अवसर मिला है। इस सारे के सारे आयोजन को जो श्रेय जाता है वो इस पावन दंपत्ति को जाता है, उपासिका वांगमो डिक्सी और उपासक रिचर्ड डिक्सी। So simply just I am introducing that the Buddha Vachana, the collection of Buddha Vachana, all the teachings of the Buddha are known collectively as the Tipitaka, and Tipitaka includes Vinay Pitak, Sutta Pitak and Abhidhamma Pitak. And since 2026 there is a very great event happening in India under Sacred Bodhi tree, 10 days event from 2nd December to 12th December every year. It's the Tipitaka chanting, at not only Tipitaka chanting, it's international Tipitaka chanting, particularly Theravada chanting. All the Theravada countries, they participate in it. And this event was introduced, initiated by this divine couple, Sister Wangmo and Dr. Richard. So just I request you to, and after 20 years, it's first time that India got chance to be chief organizer last year and this year again. So I will request you how this idea came into being. Thank you, Rajesh. It's always a pleasure to be in your company and also to have a chance to share about what is so meaningful and inspiring for both of us as students of the Blessed One, the Buddha's teachings. When you come here to Bodh Gaya, there's something very, very sacred to be seated and to hear the words of the Buddha in Pali by the great Mahasangha. When we first started in 2006, it was just a small group of just about 250 Theravada bhikkhus, located mostly in Bodh Gaya. And year by year, the power and the blessings of the Buddha, Dharma, and Sangha started to filtrate to many different countries and many different devotees who said something special is happening here. And we decided to create the council together collectively. All of the great Mahateras said we should do this. This is the right time. Now, 20 years ago, Bodh Gaya was a little different, and it almost feels like a dream when I think, how is it possible that we are sitting here with the great Indian Sangha? That has always been our great wish and mission, is how can we awaken to the Buddha's teachings here in the motherland of India. This was our wish, our great wish, under this Bodhi tree. And so for 20 years, many countries have been coming forward. Every 2 years, there's a new chief organizer. And finally, one day, one man said, and I have to say it was you, Rajesh, who started this inspiration to say India will lead one year. And because of that, we are seated here with 17 different organizations from India that are taking the leadership for this year as well. Now, we just finished the first year of India as the chief organizer. We had the most blessed ceremony with over 20,000 participants
30 countries. This has just jumped to another level of activity here. It's the largest Buddhist ceremony to date in the entire Buddhist calendar, and probably in the entire world, because for us as Buddhists, this is like the Vatican, or it's like Mecca for Muslims. It is the most holy place of all. So for us as a Buddhist, once in a lifetime, we should come together, sit with the Sangha, hear the words that the Buddha left us through the Dhamma, and for us to gain those teachings and to be inspired and to dedicate the merit to world peace. Now, our current times right now, we need more world peace than ever. The conditions in the world right now is so unstable. So even if we have a good thought under this Bodhi tree to share collectively that our merit, whatever deed we have done good, we dedicate it for all beings. सो बहन वांगमो हमें परिचय दे रही हैं कि हमने सन 2006 में एक छोटे से प्रयास के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और बमुश्किल करीब 250 भिक्खु एक साथ इकट्ठा हुए थे और वो सब यहीं बोध गया कि विभिन्न मोनेस्ट्रीज़ में विभिन्न विहारों के थेरवादी भिक्खु थे। तब हमने शुरुआत की थी और तब हमको इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि एक दिन ये आयोजन होते होते इतना बड़ा हो जाएगा। 250 लोगों से शुरू हुआ आयोजन आज 20,000 तक पहुंच जाएगा और ये भारत का ये जो बोध गया है ये ईसाइयों के वेटिकन की तरीके से है, मुस्लिमों के मक्का की तरीके से। सारी दुनिया के बौद्ध यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ आकर इकट्ठा होना, बुद्ध वचनों का संगायन करना, महासंघ का दर्शन करना, उनका वंदन करना, उनके लिए संग दान करना, ये एक महान पुण्य का अवसर है। और आज की तारीख में भगवान के वचनों का स्मरण करना, उनका संगायन करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जब सारी दुनिया बड़ी अस्थिर, अशांत और युद्ध की विभीषिका से जूझ रही है। और मुझे खुद बड़ा आनंद आ रहा है कि हमें ये सेवा करने का अवसर मिला। आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर रिचर्ड सर, हाउ यू आर accompanying with Sister Wangmo and how you initiated it with her. Well, I mean, our work in India is a tribute to the absolute genius of India. India is a genius country. The Buddha, of course, was an Indian. And Buddhist culture spread in waves all across, of course, India itself, and then around the Himalayas to China and the Far East, over the Himalayas to Tibet, and also across the seas to Vietnam and Cambodia and Indonesia and so many countries, Laos. It's extraordinary. Nearly half the world's populations are influenced by Buddhism. And Buddhism is an absolutely genius culture in itself, because Buddhism contains teachings that are directly relevant to modern conditions. So Buddhism deals with stress, it deals with alienation, it explains why technology alienates. It really has deep, deep teachings for modernity. And so this inspiration is really what lies behind our work, because when we began, it was almost as if the genius of India had forgotten its own genius. But I think what's been happening as the ceremony has got more successful and as the importance of Buddhist culture has become more recognized, that we're now seeing increasing signs that India is reawakening to its Buddhist heritage, which is a golden age of Indian culture. So we feel very inspired by this greater vision. We think that India has an incredibly important role to play in modernity and is increasingly playing that role. And Buddhist values have an increasingly important role to play in India. So there is a much bigger picture alongside this remarkably meaningful ceremony. So Wangma and I also work not only in the Pali tradition, but we also work in the Mahayana tradition, which is a Sanskrit tradition, and in the Tantric tradition, all of which emerged out of the genius of India. So this is a much bigger cultural movement, and it's very wonderful to be able to work like this. And it's a tribute to India that we are so accepted by this country. तो हमारे लिए ये भारत को एक तरीके से आभार का अभिव्यक्तिकरण है
भारत अपने बुद्ध के कारण और बुद्ध के धम्म के कारण एक महान प्रतिभा है, और देखते देखते यहाँ से जो धम्म की तरंगे उठी, इसने न केवल दक्षिण पूर्व एशिया को, इंडोनेशिया को, कंबोडिया को, चीन को, जापान को, बल्कि अब पश्चिमी देशों को भी अपने आगोश में लेता चला जा रहा है। तो हम जो भी कर रहे हैं ये भारत के प्रति हमारा एक तरीके से आभार का अभिव्यक्ति है, और हम देख रहे हैं कि भारत अपनी इस प्रतिभा को स्वयं ही भूला हुआ था, लेकिन त्रिपिटक संगायन के द्वारा भारत अपनी प्रतिभा को, अपने गौरव को पुनः स्मरण कर रहा है, और धीरे धीरे संस्कृति इस देश में पुनर्जीवित हो रही है। और ना केवल यहाँ हम थेरवादी पाली त्रिपिटक का संगायन करते हैं, हम धीरे धीरे महायानी परंपरा को भी, वज्रयानी परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहे हैं। संस्कृत और अन्य स्थानों पर संस्कृत के त्रिपिटक का भी संगायन शुरू कर रहे हैं, और हमें इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। I will request in continuation with the same thing and welcome you again. Vinay Rakkhita Bhante ji is here, and he is part of Vinay Rakkhita Bhante अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन जो परिषद बनी है, जिसको ITCC इंडिया कहते हैं। ITCC इंडिया के आप एक संगनायक हैं, उसका एक हिस्सा हैं। तो पूज्य भंते जी बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं पूरे देश में। हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे इस त्रिपिटक संगायन के बारे में। जैसे तो बहुत सारी बातें उपासिका वांगमो और अपने उपासक रिचर्ड ने बताए हैं। भारत की जो पहचान है या भारत की जो शान है वो बुद्ध से ही है। जैसे सारे दुनिया के मुसलमान वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में एक बार क्यों ना हो मक्का जाना चाहिए, जो क्रिश्चियन है वो सोचते हैं एक बार तो भी ज़रूर जेरूसलम जाना चाहिए। तो ऐसे दुनिया के सारे जितने भी बौद्ध हैं उनको लगता है कि ज़िंदगी में एक बार क्यों ना हो भारत जाना चाहिए, और ख़ास करके बौद्ध गया और जितने भी बुद्ध से जुड़ी हुई स्थल है वहाँ पर वो जाना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भारत की अपनी जो पहचान है वो बुद्ध से है। और वांगमो सिस्टर जो है उतने दूर से आकर इतना प्रयत्न करे कि आज 20 साल बाद त्रिपिटक चांटिंग ज़्यादातर लोगों को पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब क्योंकि भारत इसका अब मुख्य आयोजक है तो 2 साल से इसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता चला है कि अच्छा ऐसे भी कोई त्रिपिटक चांटिंग हो रहा है। जैसा कि जानते हैं कि भारत देश में बौद्ध धर्म जो है लगभग यहाँ पर उत्तर भारत हिमालयन छोड़कर लुप्त हो गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो 5 लाख लोगों ने नागपुर में और 2 लाख चंद्रपुर में जिन्होंने दीक्षा ली, वहाँ से ये धम्म चक्र एक तरह से फिर से गतिमान हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि सत्यनारायण गोयनका जी आए, उन्होंने विपස්සना केंद्रों का है ना यहाँ पर स्थापित की और विपස්සना ध्यान सिखाया। तो उससे भी लोगों में साधना के बारे में प्रचार होने लगा, बुद्ध के बारे में जानने लगे। उसके बाद तीसरा अगर बड़ा कोई काम हुआ है तो ये त्रिपिटक सज्जायन है, जिसके कारण लोगों को पता चल रहा है, लोग इसका सज्जायन करते हैं, किताबें ले जाते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पर आकर देखते भी हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है और जिस तरह से लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, शिक्षा भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो क्योंकि बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक सोच है, तो जितना लोग शिक्षित होंगे, उनकी वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी, मुझे लगता है उतना उतना बौद्ध धर्म ज़्यादा लोग स्वीकार करेंगे। और क्योंकि ये वैज्ञानिक युग है, लोग तर्क लगाते हैं, तो जब लोग धर्म के क्षेत्र में भी तर्क करने लगेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने लगेंगे, तो उनको बौद्ध धर्म के सिवा और कोई धर्म दिखाई नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जब विदेशी लोग आकर इतना काम कर रहे हैं तो हम भारतीय होने के नाते मुझे लगता है अपना भी ये फ़र्ज़ है कि हमको भी इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने शक्ति अनुसार जो हो सकता है वो करना चाहिए। और उसी के लिए हम यहाँ पर इस त्रिपिटक इंटरनेशनल चांटिंग काउंसिल के तौर से उनके द्वारा अपना जो भी योगदान हो वो देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो त्रिपिटक संगायन का आयोजन है जो पिछले 20 साल से चल रहा है, इस साल 21वां साल है। और जब पिछले साल भारत को ये अवसर मिला मुख्य आयोजक होने का, तो भारत के सभी राज्यों की इसमें बड़ी सक्रिय भागीदारी हुई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में ये आयोजन हो ही रहा है।
लेकिन विगत वर्ष सबसे सक्रिय भागीदारी किसी राज्य की हुई तो वह अरुणाचल प्रदेश की हुई। अरुणाचल प्रदेश का आध्यात्मिक नेतृत्व इस समय पूज्य भंते अग्गधम्म जी कर रहे हैं। पिछले वर्ष की इसी ITCC की बैठक में अग्गधम्म भंते जी के साथ लगभग 1 घंटे इसी बात के ऊपर चर्चा होती रही, हमें इतने दिन का भोजन दान का पुण्य लेना है, हमारे उपासकों का बड़ा वो है। और खुद समन्वय सेवा संस्थान को 8 तारीख की तारीख मिली थी कि भोजन दान कराना है, लेकिन भंते जी का आग्रह, उपासकों की श्रद्धा, दान का दान करना भी एक पुण्य है, ये सोचकर वो तारीख हमने आपको दान की थी। हम पूज्य भंते अग्गधम्म जी से अनुरोध करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए इस साक्षात्कार के लिए। आपने तो बहुत प्रशंसा कर दिया इसे। आप इससे बड़ी प्रशंसा के योग्य हैं। यहाँ उपस्थित भंते भिक्षु संघ, साथ में हमारे वांगमो जी, डॉक्टर रिचर्ड जी और आप सभी उपासक उपासिका सभी लोग, ये पर हम लोग मीटिंग में आए थे। अभी हो गया कि अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे लग रहा है ना। तो हम लोग जो बुद्धिज़्म जो है, हम लोग का एक जो त्रिपिटक करके ये ग्रंथ है, तो कोई ब्लाइंड फेस नहीं है हम लोग का, ब्लाइंड फेस नहीं है इसमें। तो उसमें भी हम लोग जानते हैं कि जैसे विनय पिटक, इस विनय पिटक इज बेसिक लेवल, सुट्ट पिटक इज हाई लेवल, अभिधर्म पिटक इज एडवांस लेवल। तो इसीलिए अभी कमिंग में जो हम लोग पाठ करेंगे, जो चैंटिंग करेंगे, जैसे एडवांस लेवल है, तो इसका वजह से उसमें हम लोगों को पता लगता है कि उसमें विजडम क्या चीज़ ठीक नहीं है, क्या ठीक है, उसमें आपको राइट व्यू, राइट थॉट जो आता है। तो ये अभी धर्म पितक के वजह से ऐसे होता है। सब ज्ञान होना चाहिए, कोई भी काम करना है तो कोई भी, तो हम लोग विजडम के अनुसार हम लोग काम करेंगे तो निश्चित हम लोगों का सक्सेस होने का है। अभी कोई हमको पूछा था कि, बोला था कि वॉर हो रहा है कि त्रिपिटक चैंटिंग इज विल बी सक्सेस। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, विल सक्सेस, नो प्रॉब्लम देयर। वॉर हो रहा है, वो कहाँ अरब में हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, क्या है, वो तो अलग है। वो यहाँ तो वॉर होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम तो उधर बोलते रहते हैं कि अपने दायिका लोगों को जी, ये बेसिक लेवल भी हो गया। लास्ट ईयर तो बेसिक लेवल था, अभी आएगा वो हाई लेवल का, जो एडवांस लेवल में आएगा। उसके बाद जो सुट्ट पिटक होगा तो उस हाई लेवल जो होगा अभिधम्मा, वो नहीं, अभिधम्मा के बाद जो आएगा सुट्ट पिटक, लास्ट ईयर पढ़ा था वो क्या बोलते हैं, चैंटिंग किया था वो विनय पिटक, बेसिक लेवल। अभी जो कमिंग में जो दिसंबर में होगा चैंटिंग, अभिधर्म पिटक, दैट इज एडवांस लेवल है। उसके बाद जब सुट्ट पिटक आएगा तो वो हाई लेवल का बोलता है। तो मेन तो ये अभिधर्म पिटक है। विनय पिटक हम लोग कहीं भी जाता है कि रिचुअल फंक्शन में ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठो, ऐसे उसमें ओ अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बैठना है, ऐसा बैठना है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। तो मोंग लोगों के लिए जो विनय का बारे में वो बताता है वो, तो इसलिए वो तो बेसिक लेवल सबसे पहले विनय के बारे में सिखाता है कि जैसे हम लोग, मैं बचपन से 1956-57 जब मंदिर में है, आज तक हूँ बचपन में, सिंस 1956-57 से अभी मैं मंदिर में रहते आज 2026 हो गया। 2026 हो गया, बचपन से पता है। गुरुजी लोग बोलता है कि ऐसा मत बैठो, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसे ये खराब चीज़ है, ऐसा नहीं करना है, तो ये बताता है ऐसे, तो उसी में मालूम होता है। तो इसीलिए अभी हम लोग इतना बुद्धिस्ट होते हुए भी हम लोगों को ध्यान नहीं है, पता नहीं था। अभी वांगमो रिचर्स, अगर ये लोग अगर वो स्टार्ट नहीं किया होता तो थोड़ी ना होता है कि त्रिपिटक चैंटिंग, व्हाट इज द त्रिपिटक चैंटिंग, मालूम ही नहीं होता है। अभी ये उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वांगमो, उसका पिताजी, उसका बड़ी बहन तो वो
महायान का वो सपोर्टर है, वो राजगीर में कहीं कहीं करता था उसमें। एक निंगमा पा जो वो भी महायान का है, लेकिन ये अभी वंगमो जो है ना, ये हम लोगों का थेरावादा का वो मतलब लीड लेकर के अभी रिचर्ड भी साथ में है, उसको शक्ति दे रहा है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो हम लोगों का भाग्य तो नहीं बनना चाहिए, वी आर वेरी लक्की है। इसीलिए हम लोग अभी बुद्धिस्ट में इसमें रिपीट कर, नहीं तो इतना बुद्धिस्ट हुआ, मॉन्ग भी था, लॉट ऑफ मॉन्ग एंड समथिंग लर्नेड मॉन्ग, लेकिन ये त्रिपिटक चैंटिंग का शुरू ही नहीं किया था। है तो कि अपने नहीं? दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे तो साथ संबोधित कर रहे थे। वी आर वेरी लक्की दिस टाइम। या अभी जो हो रहा है, जो लास्ट ईयर से 2025 से लेकर के अभी 26 में आ रहा है, इसका अभी शुरू नहीं किया। इसलिए हम सभी लोग एक मत एक हो करके इसको कैसे आगे बढ़ाएगा। तो हमको संबोधित कर रहे हैं एक पूज्य जो बनते अगदम होना जी, चाहिए वो सर। जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। और आपका पूरे अरुणाचल प्रदेश में, और न केवल अरुणाचल प्रदेश में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आपका अच्छा प्रभाव है, आपका अच्छा आभामंडल है। और हमारे दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि ये त्रिपिटक संगायन, इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग हर साल 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 10 दिन के लिए होती है, लेकिन इसकी तैयारी पूरे साल भर करनी पड़ती है। आज जो सारा का सारा ये संघ यहाँ इकट्ठा हुआ है, जब भारत को मुख्य आयोजक होने का अवसर मिला है, तो इसके लिए ITCC इंडिया नाम का एक संगठन गठित किया गया है। इंडिया और एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोगों का अरुणाचल जो है बुद्धिस्ट व थेरावादा बुद्धिस्ट नॉट फ्रॉम द बोट गया, म्यांमार से लेकर के आया, फ्रॉम द म्यांमार थ्रू इसे करके इनडायरेक्ट इसे करके गया। तो अभी हम लोग कनेक्शन कर रहा है कि विद द बोट गया, मेन बॉडी 3 से कनेक्ट वो कनेक्शन हो रहा है। बनते जी बता रहे कि हमारे पास कोई धम्म के ग्रंथ नहीं थे, हमारे पास जो आया है धम्म म्यांमार से होते हुए आया है, और तब हमको बोध गया, स्मरण में आ रहा है। हम पूज्य बनते जी को स्मरण करेंगे, कृपा करके आप और भी। एक दो फिर वो उसमें वो कनेक्शन है, क्योंकि हम लोगों का जो अरुणाचल जो है एक समय नेफा था, नेफा था। तो उस समय जो उसको बोलते हैं पिजन रेप मतलब वहाँ कोई लर्नेड पीपुल नेवर विन। तो उसमें कोई भी लर्नेड जैसे अरहत हो या वो सब कभी वहाँ विजिट नहीं किया। इवन द डिसाइपल ऑफ बुद्ध का भी कोई डिसाइपल भी नहीं गया वहाँ पे। फिर भी हम लोग ये बुद्धिस्ट को ये असली है, ये इसमें मानना है, ये बहुत है, यही है, उसका फॉलो करना है उसका। ये हम लोग ले करके हम लोग ये बोध गया से कनेक्शन गया। वो कनेक्शन अभी क्या हुआ कि जैसे वंगमो जी है वो बुलाता है, इसलिए हम लोग आया। अभी अगले बार तो वंगमो पिछले साल कितनी ट्रेन आई थी अरुणाचल? कितनी ट्रेन आई थी? 2 ट्रेन, एक ट्रेन पूरी आई थी। नहीं, ट्रेन तो आपका गया तक आता है, वो तो अलग है दूसरा, वो पटना आता है। मेन जो आपका क्या बोलते हैं राजधानी जो वो तो दिल्ली से पिछली बार पूरी ट्रेन आई थी ना आपकी? हाँ, वो तो गया तक आया था। उस समय वो रास्ता नहीं था, वो ट्रेन जो इधर आने के लिए कोई ट्रेन नहीं, ये स्पेशल ट्रेन हम लोग बुक किया था। बनते जी पिछले साल त्रिपिटक संगायन में पूरा ट्रेन स्पेशल बुक करके लेकर आए थे, और सबसे बड़ी संख्या अरुणाचल प्रदेश की थी। हम पूज्य बनते जी को अनुरोध करेंगे, कृपा करके आप भी आशीर्वाद दीजिए। यस बनते जी, यस। नमो बुद्धाय। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक का शाहजहान चैंटिंग गाना अंगमो दीक्षित और रिचर्ड दीक्षित जी ने आज से 20 साल पहले इस पवित्र जगह पर 2006 में शुरू किया, क्या उनके पिताजी दादा तुर्की के आशीर्वाद से। अभी 20 साल हो चुका है। इस साल गया हुआ साल में भारत का जो मेन ऑर्गेनाइजर था, तो इस जगह पर ऐसा जगह पर ये चैंटिंग करना बहुत बड़ा एक पुण्य है। और सब लोगों को दुनिया की भिन्न भिन्न जगह से यहाँ आके त्रिपिटक चैंटिंग किया है। और कि ये ऐसा जगह है कि 77 गौतम यहाँ पर बुद्ध प्राप्त हुआ, और आगे आने वाला जितना भी बुद्ध प्राप्त होंगे इसी स्थान पर होंगे, और भविष्य में जितना भी
बुद्ध हुए हैं यहाँ पर हुए, तो ये बहुत बार पवित्र है, पवित्र जगह है। तो इसका शेष नांगमो दीक्षी और इसे दीक्षी को जाता है, कोई साधारण आदमी ऐसा नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा जवाबदेरी का काम No, उन्होंने ordinary किया people है। can do it तो as you are doing. उनके अंदर में You're extraordinary. परामी है, हम लोग नहीं कर सकते इसको। तो इसलिए उनका हमें बाप पूजातमा संघ से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का, दीक्षित जी और ऋचा जी का लंबा ही रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और आप लोग भी यहाँ इस स्थान पर आके आने वाले साल में यहाँ पर आके यहाँ का बुद्धा, जहाँ पर बुद्ध प्राप्त हुआ उस स्थान का दर्शन करके आप लोगों को भी पुण्य पाने का मौका मिलेंगे। तो ये निवेदन है कि आप लोग ज़रूर एक बार इस पवित्र स्थान को दर्शन करना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि जो आदमी, जो 4 स्थान है, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रद्धा भक्ति के साथ अगर इसको दर्शन किया तो कभी नीचे यूनि में, जानवर में, प्राणी में पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा समय निकाल के आप लोग ज़रूर आएँ, तो आप लोगों का सुख शांति होगा। इसी के साथ बुद्ध धम्म संघ से मैं तो प्रार्थना अपने करता हूँ दर्शकों आप को हम लोगों ये भी का, अवगत कराना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप जानकर लोगों का खुशी स्वास्थ्य होगी। अच्छा रहे, लंबाई और निवान प्राप्त हो। तो अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल इस पूरे आयोजन का मीडिया कवरेज की जिम्मेदारी इसी चैनल को थी, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल को, जिस पर आप इस साक्षात्कार को, वार्ता को सुन रहे हैं। और जैसा इसका नाम है आवाज़ इंडिया, ये भारत की आवाज़ है। और आज जो यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, हम इस समय बैठे हुए हैं बोधगया में। बोधगया में ये रिचर्ड सर और वांगमो सिस्टर के सौजन्य से ITCC की 2026 की आज पहली बैठक हो रही है। आने वाले समय में ये बैठकें ऑनलाइन होती रहेंगी। इन बैठकों में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। हम इससे पहले कि सुरेश जी से बात करें, पूज्य भंते जी और हैं, आप 2 शब्द कहिए, फिर हम। हाँ, Namo Buddhaya. जी। Sorry to say, I don't have much knowledge about this program, so I may not have much to talk about it. So, however, I would like to share some merits and appreciation to those who are participating in this. आप हिंदी में भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके श्रोता सब हिंदी में हैं। हाँ, हिंदी भी थोड़ा ब्रोकन है. हाँ, जो आपको आता है वो बोलिए आप। ITCC, whoever participating in the ITCC, and trying to make more perfect, more than last year. जो अभी बोले हिंदी मुझसे क्लियर नहीं है ना तो मैं अनुरोध करता हूँ, जिससे कि ये गया पे हमारे गौतम बुद्धा ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो मारा और जैसे कि डिफाइलमेंट बोलते हैं, लोभा दोषा मोह को हराया था, वैसे ही हमारे ये IBC मेंबर और जितने भी हमें योगदान देने वाले, जैसे कि हमारे रिचर्ड और हमारे वांगमो मैम, हमारे ट्रिपल जेम जैसे बुद्ध धर्म और संघ के लिए इतना आप योगदान दे रहे, उसी प्रकार हमारे गौतम बुद्ध जो यहाँ पे गया पे ज्ञान प्राप्त हुए, उसी प्रकार हमारे ये पूजनीय ये हमारे रिचर्ड और हम वांगमो दीक्षित मैम का जो विशेष है वैसे उज्जवल हो, और उसके बाद जैसे कि ड्रीम है उसका जो ये त्रिपिटक के विशेष में उसका जो विशेष है वो कम सक्सेस हो, बल्कि मैं इन्हीं उम्मीद करता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। ये जो आयोजन होता है, जैसा कि पिछले साल हमने यहाँ पर देखा कि लगभग 20,000 लोगों का आना हुआ, और ये सभी तरफ प्रचार प्रसार से, और आने वाले समय में उम्मीद है कि संख्या काफ़ी बड़ी होगी। किसी भी एक स्थान पर 20,000 लोग एक साथ आ जाएं तो उनको प्रबंधित करना भी आसान नहीं होता है। और यूँ समझिए कि इतनी सारी भीड़ हम देखते हैं सभी धार्मिक स्थानों पे, जब भी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, हम अक्सर किसी न प्रकार की भीड़ का, मजमे का, उन्माद का, कोई न कोई दुर्घटना की ऐसी खबरें सुनते हैं। लेकिन पिछले 20 वर्षों में बोधगया में त्रिपिटक संगायन के दौरान ऐसी कोई खबर नहीं आई है। और इसके पीछे कारण होता है, कुछ बड़े समर्पित धम्म सेवक होते हैं,
जो सभी चीज़ों को देख रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होते हैं, मैत्री के साथ होते हैं। इसमें बड़ा योगदान सुरेश बौद्ध जी का है। आप YBS यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी उस संगठन के आप मुख्य कर्ता धर्ता हैं और भारत की पुण्य भूमि संकिसा से हैं, जो भगवान के तीर्थों में गिना जाता है। और डॉक्टर रिचर्ड कहते हैं कि कभी किसी समय संकिसा बोध गया से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमि रही है। तो हम सुरेश बौद्ध जी को आमंत्रित करते हैं कि कृपया आप इसके बारे में अपने अनुभवों को साझा कीजिए। नमो बुद्धाय। आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत ही महत्व की बात है कि जिस जगह पर हम लोग आज हैं वो बोध गया है, जहाँ से भगवान बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व करुणा, मैत्री और भाईचारा का संदेश दिया था। भगवान बुद्ध के संदेश राजाओं के द्वारा, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा पूरी दुनिया में फैल गए। उस वक्त में भारत में कोई राजा नहीं था जो भगवान बुद्ध का शिष्य न बना। उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट अशोक जैसे राजा ने अपने बेटा बेटियों को बुद्ध के शांति के संदेशों को लेकर के भारत की सीमा के बाहर भेजा और वो जाकर के श्रीलंका में प्रचार प्रसार किए। उतना ही नहीं, इसके बाद बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे भिक्षुओं ने भारत के बाहर जाकर के भगवान बुद्ध के शांति के संदेशों को फैलाया। उसी क्रम में बाद में चाइना से हुएनसांग, फायान जैसे लोग भारत में शिक्षा लेने आए। ये तो क्रम फिर बाद में जो चला, जो कोरिया से भी लोग आए, श्रीलंका से अनागारिक धर्मपाल जैसे लोग आए, ब्रिटिश से कनिंघम जैसे लोग आए। बाद में आकर के भारत का एक पुत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने इसको आकर के पुनः रिवाइवल की तरफ ले गई। तो उसी क्रम में बहन बामगो डिस्की और रिचर्ड जी आज से 20 साल पहले अमेरिका से आकर के उन्होंने इस मिशन को फिर इस 21वीं सदी में आगे बढ़ाया और लगातार एक कंटिन्यू भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक माहौल बन रहा है कि पुनः फिर शांति के संदेश पूरी दुनिया में जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो आज की स्थिति, पूरा वर्ल्ड ईर्ष्या, वैमनस्यता, देश, युद्ध की आग में झुलस रहा है। और निश्चित ही आप लोगों को मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ। वो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध के शांति के संदेश ही हैं जो दुनिया को ईर्ष्या, वैमनस्यता, देश को बदल करके करुणा और मैत्री, भाईचारा के तरफ ले आएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ITCC का, स्पेशली हमारी बहन भाई इन लोगों ने जो शुरू किया है। इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है तो हम पूरी दुनिया के लोगों को के साथ साथ स्पेशली हम भारत के लोगों को आह्वान करते हैं कि आप बुद्धिस्ट हों और ना बुद्धिस्ट हों, आप आइए ITCC के साथ मिलकर के हम एक साथ मिलकर के काम करते हैं। आज यदि आपको लगता है कि इस संसार को बचाना है, इस दुनिया को बचाना है और ये दुनिया अगर ऐसा ही रहा तो बहुत दिन नहीं होंगे कि ये बारूद के ढेर में बदल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे लीडर राजेश चंद्रा जी का, जो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रही है उसके आप लीडर हैं और आपने मौका दिया। और स्पेशली मैं भिक्षु संघ का आह्वान करता हूँ, भिक्षु संघ का मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ कि आप लोग मुझे दिशा दे रहे हैं। और निश्चित ही आवाज़ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरी दुनिया में इस शांति का मैसेज और भगवान बुद्ध का मैसेज यहाँ बोध गया की ज़मीन से आप पूरी दुनिया में फैला रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि ITCC के साथ के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके आप शारीरिक सहयोग कर सकते हैं, आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं और आप अपना मानसिक सहयोग करके इस दुनिया को इस धुंध से निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेश जी ने बड़े अच्छे संक्षेप में बताया। नाउ आई वुड अगेन कम टू सिस्टर वांगमो and requesting her, what are your future planning? As I am seeing for the coming year plan, and last year you're extending your activities in other states also, and as you said, it is much need of the hour when the whole world is facing turmoil, unrest with the wars. So what you say your extension program? Yeah.
Well, we feel very blessed that we have such a strong foundation here now. After 21 years of being together, I think we can say that we have established something, a foundation. And so while we feel that there's necessary to go out to other holy places that the Buddha walked and taught, especially in Uttar Pradesh and down in the south. We did this very large yatra that took us 10,000 kilometers last year. We traveled by bus and by walking and a couple times by flight. And as you know, in America, we had this peace walk. In the same way, we bring international Buddhist monks to villages all over India where they are calling us. They're asking us to do some kind of similar program of reciting the words of the Buddha in Pali and also going to the sacred site that has a history behind it and to give some Dharma talks. So I'm the lucky one to travel with the monks, and they go to each of these places and we meet incredible people, so much devotion everywhere that we go, who have so much faith in the Triple Gem. And that really opens the heart for such a strong connection to the people and to the land, to the roots. This is the motherland. When you actually go to these places and you see the Ashoka pillars, you see the ancient monuments, you can imagine, not too difficult, what it might have been when the time of the Buddha or after his demise, what the great monks would do to carry the teachings of the Buddha until their period. So these things are still here on this land. And when you walk there and you have the words of the Buddha come alive, it somehow, it brings great energy and great spirit to the place. So recently, we have been asked by the Odisha government, really from the Ministry of Culture and Tourism, to invite us to the Diamond Triangle, which includes Udagiri, Ratnagiri, and Lalitgiri. And so we just finished the second Guru Padmasambhava program. Now, what's so exciting about this is where Vajrayana, if it has one place roots, here we have the Mahabodhi tree. We have, of course, the history of Buddha's enlightenment here. But when you go to Diamond Triangle, you see the Vajrayana symbols. You see so many taras. You see the actual physical sign of Vajra, the symbol of a Vajra inside the stupa. So this, for many Vajrayana practitioners that follow in the Himalayan tradition, in Ladakh, in Sikkim, in Bhutan, of course in Tibet, where this tradition came from Nalanda and also from Diamond Triangle, now we can go and see with our own eyes where it came from. So that's very meaningful to bring lamas there, to bring anilas there, and more importantly is to bring Theravada, Mahayana, and Vajrayana together. Of course, they have their unique differences, their unique path to liberation. But when we come together, it really shows, or it makes you feel there's the Buddhayana. And I think that sense of friendship between the yanas is very important, that we feel a connection. We don't feel separate. We don't feel like, oh, these are the Vajrayana Buddhists and these are the Theravada Buddhists. Actually, 21 years ago, I had many kind of comments like that. Oh, this is just Lama. This is, and what are you doing in the Theravada, like that. But now, because we sit together, we eat together, we even discuss Dharma together, we can sit and understand each other more. So I'm very excited about this Orissa program. I think we will have it again. For surely we're going to have it December 28th till January 5th. And we're bringing 3 days of great Vipassana teachers so that lamas within the Vajrayana tradition can also have the same benefit that I have had, to listen to the great Theravada monks and learn from them
I have learned so much about Dharma from them. And I wish to have my fellow Dharma brothers within the Vajrayana tradition to also see the benefit of Vipassana, see the benefit of Shamatha practice. Maybe they did not hear that before because of the distance, being in the Himalayas, being from Tibet. Maybe they never met monks from Sri Lanka or monks from Thailand. So now, being in India, we can meet each other. We can discuss together the Dharma, and maybe we don't see such differences. Maybe we see more commonality. तो बहन वांगमो जो बता रही हैं, संक्षेप में उनके कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 20 साल से और अभी 21वां साल है त्रिपिटक संगायन होते होते मुझे भारत के दूसरे राज्यों से भी निमंत्रण मिलने लगा है कि हमारे राज्य में भी कुछ इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए, कुछ इस तरीके का आयोजन होने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप अभी पिछले 2 साल से हम लोग गुरु पद्म संभव समारोह हीरक त्रिकोण में मना रहे हैं उड़ीसा में। इस साल तीसरा होगा, जहां हम वज्रयान और महायान को पुनर्जीवित करते हुए देख रहे हैं, जहां पर वज्रयान और त्रिपिटक जो संस्कृत सूत्र हैं उनका पाठ होता है, और ये सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, बिल्कुल विशिष्टियां हैं। बावजूद इसके कि हम सभी यान एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, और इसके द्वारा हमारे बीच में जो मैत्री और शांति विकसित हो रही है वो न केवल इस देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए बड़ी अच्छी है। आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू टॉक अबाउट वैशाली एंड नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। Thank you, Rajesh. So one of the very unique programs that we're going to add this year is the first Vaishali International Buddhist Chanting Program. So, as you know, the government of Bihar spent so much money on bringing the relic stupa alive. They brought the relic from Patna, and now a beautiful stupa has come up. And so the director of culture has asked us to bring 1,000 participants. So we would ask those of you to please consider to join with us. They will provide the transportation and also the accommodation and the food from the 13th of December till the 17th. And then after that, we will do our annual Jetian Valley Walk, 1,000 of us walking in the time of when King Bimbisara met the Blessed One. So we walk maybe 14 kilometers. And then the last program is the Mahakashapa walk to Gurpa. It takes usually 2 days, so that will be on the 17th and 18th. And then finally, we will have a Mahayana chanting at the top of Vulture's Peak. This is all in an effort to bring the Mahasangha back to the places of the Buddha so that they can come alive again. It's a living heritage. And Northeast. And we also have the Northeast program, which will begin on February 2nd to the 15th. And Venerable Agadama and many other great monks will be there to receive international monks. And so we will be able to see traditional Buddhists. I'm very looking forward to seeing them, to see how they manage the traditional Buddhists and to meet new culture and to be received by them. So I'm very looking forward to starting the Tipitaka chanting in collaboration with all of the great monasteries in the Northeast. तो बहन वांगू हमको संक्षेप कर रही हैं, मैं उनका कल बातों को संक्षेप में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये त्रिपिटक संगायन का जो आयोजन है धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता चला जा रहा है, विस्तार पा रहा है, और इसी क्रम में आने वाले समय में वैशाली में एक बड़ा आयोजन होने को है, उड़ीसा के बाद वैशाली, और इसी क्रम में अगले साल 2 फरवरी से 15 फरवरी तक 13 दिन की पूरे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बीच में महासंघ के साथ धम्म यात्रा होगी। हर जगह त्रिपिटक संगायन होगा, जिसका आध्यात्मिक नेतृत्व पूज्य बनते अगधम्म जी कर रहे होंगे। तो एक तरह से ये क्रमिक रूप से अपना रूप स्वरूप ले रहा है। भगवान के वचनों में 4 प्रकार के दंपत्ति कहे गए हैं, तो उन 4 प्रकार के दंपत्तियों में चौथा उत्तम दंपत्ति कहा गया देव दंपत्ति। देव दंपत्ति, हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ आर फॉलोइंग द सेम पाथ, बोथ हैव द सेम डेस्टिनेशन, बोथ आर फेथफुल टू ट्रिपल जेम्स। लाइक दिस
Richard and Wangmo, both are a divine dampati, divine couple. So again, I will request Richard sir. Sir, please talk about your future plannings. This. Well, the other bit that we're talking about is we're going to create a whole series of regional events. Although we have one planned in the Northeast, actually we hope over the next few years we will have yatras in every region of India. Because, of course, India is not a country, it's a continent. And there's 1.4 billion people here. And there are Buddhist groups all over the country, actually. So we're going to have regional yatras happening in the north, in the middle, in the northeast, the northwest, all across India. And we hope over the years to come, we will gradually spread Dharma activity on a regular basis, coming out from our work in Bodh Gaya to all these other areas. And this is really a tremendously inspiring thing to do. And at the same time, we're very optimistic that Buddhist values and Buddhist insights will continue to influence discourse at national level. तो रिचर्ड सर बता रहे हैं कि हमारे इसी क्रम में जो चल रहा है, भारत जो है एक देश नहीं है बल्कि एक प्रायद्वीप जैसा है, एक कॉन्टिनेंट जैसा है, और हम धीरे धीरे सभी भारत के सभी राज्यों में इन कार्यों को हम शुरू करना चाहते हैं। तो आप इनकी दूरदर्शिता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की पृष्ठभूमि से, इंग्लैंड की पृष्ठभूमि से और इस पृष्ठभूमि के व्यक्ति भारत को भारत का धम्म बताने के लिए अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। अभी हम आधुनिक युग में देखते हैं तो अनागारिक धम्मपाल के बाद बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उसके बाद हम देखते हैं सत्यनारायण गोयन का, ऐसे एक श्रृंखला है पूरी जो भारत को बुद्ध का धर्म पुनर्जीवित करने के लिए जीवन दे रहे हैं। उस श्रृंखला में आज आप दोनों दंपत्ति हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम कहना चाह रहे हैं कि 2025 और 26 को हमने त्रिपिटक संगायन भारत को आयोजक देश के रूप में क्यों चुना? क्योंकि 2026 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा धम्म दीक्षा के 70 साल पूरे हो रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण वर्ष है, तो इस नाते भी बड़ा मीनिंगफुल, इट्स अ सिग्निफिकेंट ईयर। व्हाई वी चूजन दिस 2025-26 बिकॉज it's 17th anniversary of Dr. B.R. Ambedkar adaptation of Buddhism. So I will again request you both to say something about his contribution to Buddhism. Well, Bodhisattva Dr. Ambedkar was, of course, one of the most important pioneers of Buddhist modernity. And his message and his inspiration has created the foundation for the renaissance of Buddhism in India. So he is an extraordinarily important figure. He's not only a legalistic mind with the wonderful Indian constitution, but he also understood the Buddhist teachings well enough to be able to interpret them in a manner that worked for his followers in the 1950s. And now what we're seeing is India develops so rapidly. I mean, India's economic growth is stellar. It's now the 4th largest economy. It's going to be the 3rd largest economy within a few years, and I think it will become the 2nd largest economy within 10 years. It is really growing rapidly, and as a result, economic conditions are improving, so the ground for Buddhism is getting better and better and better. तो कहने की आवश्यकता नहीं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक असाधारण प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं और विधिवेत्ता होने के साथ, भारत के संविधान निर्माता होने के साथ वो बुद्ध धम्म के प्रति भी इतने बड़े प्रतिबद्ध थे और ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, और जिनके नाते आज भारत में बुद्ध धम्म का धम्म चक्र पुनः गतिमान हो रहा है। और उनके बनाए संविधान के नाते हम देख रहे हैं कि भारत क्रमिक रूप से दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता चला जा रहा है। अभी हम दुनिया की 4थे पायदान पे हैं अर्थव्यवस्था में और आर्थिक महाशक्ति में, और क्रमिक रूप से ये 3रे पायदान पे आएगा, 2रे पायदान पे आएगा। ये भारत लगातार बड़ी असाधारण गति से प्रगति कर रहा है। इसका श्रेय डॉक्टर B.R. बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को है। हम आई विल अगेन रिक्वेस्ट सिस्टर वांगमो टू से
few words, yeah. Yes, I think it's very significant that we happen to be in the 70th anniversary of Bodhisattva Dr. Ambedkar, and that we will be here under the Bodhi tree. Actually, the message of world peace and the message of equality, the message of democracy, the message of spiritual friendship and spiritual values is needed more than ever. And India, as it grows economically as a superpower, which it is, it needs to also send a message of spiritual power. That is the best gift you can give to the entire world humanity at this hour, where we can come back to our spiritual values when there's war and conflict. How can we avoid that? The Buddha's message is purely about compassion and loving kindness to each other. And that message can come from India authentically. You cannot fake that. These are symbols that are real, that are based in history. And so we feel that India is the only place in the world that can send that message, and that message that Dr. Bodhisattva Ambedkar gave to his people. You can see it when the people come here from Maharashtra, how devoted and how faithful they are, not only to his own teachings, what he gave and imparted, but also because he introduced them to the Buddha's teachings. And I think that is such a worthy person, such a noble person, and to be also the founder of the Indian Constitution, the world's largest democracy, but also having spiritual values. That's tremendous. तो बहन वांगमो के शब्द बड़े अर्थपूर्ण हैं। आप मूलतः तिब्बत के पिता तरथंग तुलकू की बेटी, खून से तिब्बती, रहने को अमेरिका से, और साथ में रिचर्ड सर की जीवन संगिनी, और आपके ये शब्द कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो इस देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण हुए कि उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संपदा से उसको परिचय कराया। और आज की तारीख में सारी दुनिया को यदि कोई शांति का संदेश दे सकता है, कोई आध्यात्मिकता का संदेश दे सकता है, तो वो भारत का बुद्ध धम्म दे सकता है। और उस आध्यात्मिक संपदा के प्रति जागृत करने का श्रेय बोधिसत्व, बहन वांगमो बार बार बोल रही, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रेय है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साल उनके द्वारा धम्म दीक्षा का 70वां साल चल रहा है और इस अवसर पे भारत को आयोजन का अवसर मिला है, तो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आई विल अगेन रिक्वेस्ट योर ब्लेसिंग विनय रखिता सर, वेनरेबल, एंड देन अगधम्मा बनते जी, योर ब्लेसिंग। सो या तो जैसे कि सभी लोगों ने बौद्ध धर्म और बाबा साहब के जो योगदान है उसके बारे में बताया है, तो बाबा साहब ने एक जगह कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सब कुछ त्याग देंगे। तो सब कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो त्याग अभी कर रहे हैं। जब जिस दिन सभी त्याग कर देंगे उस दिन मुझे लगता है भारत सारा बौद्धमय अवश्य हो जाएगा। धन्यवाद। सुखो बुद्धानां उत्पादो सुखा संघर्ष समग्गी समग्गानां तपो सुखो। यही हम लोग में ये करना चाहिए कि अभी इस जो पिछले साल शुरू किया, अभी इस साल भी हो रहा है त्रिपिटक चैंटिंग। इसके बाद तो हम सभी लोग चैंटिंग के पहले भी हमें यूनिटी पे रहना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, तभी हमारा सक्सेस होगा। जो हम लोग जो एम कर रहे हैं, आवर एम विल सक्सेस। तो इसीलिए हमें ये आने वाला जो है त्रिपिटक चैंटिंग में भी यूनिटी हो करके, एकजुट हो करके अच्छा से कैसे चलाएगा, बिना लड़ाई झगड़ा, बिना ये लोभ द्वेष, ये नहीं होना चाहिए। जो बचपन से मंदिर में रहता है उसका वो तो समझता है, जो बाद में बुढ़ापा में जो मोंग बनता है उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा रहता है ना, मोंग लोग कोई ऐसे बुढ़ापा में मोंग होता है तो थोड़ा बहुत गलती भी होगा, तो उसमें हम लोग के माफ़ भी करना है, उसको शिक्षा भी देना है, बताना भी है कि गुरुजी भंते ऐसा नहीं है, ऐसा है, बोल करके वो रास्ता डायरेक्ट लोगों का भी कर्तव्य होता है, उसको सिखाना चाहिए, बोलना चाहिए। हम लोग तो ये मानता है सर।
छोटा बच्चा होने पर भी उसका जो असली जो उसका जो बात जो उसका जो रास्ता जो ठीक हो तो उसको मानना चाहिए। वो बूढ़ा होने पर भी वो गलत सलत करेगा, उल्टा सीधा करेगा, बदनाम होगा, वो सब नहीं होना चाहिए। उसको भी हम लोग शिक्षा देने के लिए क्षमता होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था बड़े से, तो वो चीज़ जो है दुख लगता है। हम लोग ये ड्रेस पहनता है तो मोंग है, तो फिर इसी में भी हमें लोभ ज़्यादा है, द्वेष है, मोह है, वो चीज़ रहेगा तो हम लोग क्या कैसे कहेगा। सिर्फ बाल छिलने से नहीं होता है, मन को सफ़ा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सभी लोग जितना भी बुद्धिस्ट जो है आपका ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ साउथ जितना भी हम लोग बुद्धिस्ट है, सब लोग एकजुट होना चाहिए। जैसे वंगमो और रिचर्ड ने जो लीड करके हम लोगों को रास्ता दिखाया, वो लीड करके दिखा रहे थे ये ऐसा ऐसा है। तो बताइए हम लोग को पता नहीं, तो कम से कम उसके साथ चलना भी चाहिए, तो है कि नहीं, कदम में कदम। तो ये पूज्य भंते जी बुद्ध धर्म की मूलभूत मूल्यों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि हमें एकता में, यूनिटी में भी रहना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के धम्म एकता, शांति, सामंजस्य और मैत्री का धम्म है। और इसी दृष्टिकोण से हम त्रिपिटक संगायन का आयोजित कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि ये हर साल आयोजित होने वाला कार्यक्रम है, जो कि 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होता है। और इस बार भारत के सभी राज्यों की इसमें सक्रिय भागीदारी और अधिक बढ़ चढ़ के होने वाली है। और शाम को कुछ सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे अलग अलग प्रांतों और प्रदेशों के। तो इस चैनल के ज़रिए हम सबको आह्वान कर रहे हैं, भारत की ये अपनी संपदा है, भारत की चेतना के जागरण का आयोजन है। इसमें अधिक से अधिक तन, मन और धन से शामिल होइए। महासंघ को सेवा करने का अवसर मिलना, जीवन में ये पुण्य अवसर बार बार नहीं मिलता, बड़ा दुर्लभ होता है। इसमें आप तन से शामिल हों, मन से शामिल हों, धन से शामिल हों। भिक्षु संघ को भोजन दान दीजिए, संग दान दीजिए और इस आयोजन में अपना योगदान दीजिए। इसमें भारत का गौरव है, हमारी अपनी चेतना का गौरव है, यह हमारे अपनी मानव जीवन को जन्म लेने का धन्य का अवसर है। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू ऑल। Thank you.